Hello students. Today we are starting with a series known as DUM Lagaa ke Hayishaa series. In this topic of pediatrics, we'll be discussing various previous year questions, various one-liner questions, image-based questions, clinical scenario questions and approach to these clinical scenario questions. Okay. And after going through this lecture, there is a quiz. Okay, so just answer the questions in the quiz so that you can come to know that there is further scope of improvement in your preparation. Okay, so without wasting any further time, let's begin with it. So the first question is embryonic period is up to. Okay, so important, the periods of growth you should always remember. Embryonic period begins from 3 weeks of life and extends up to the 8 weeks of life. Okay, this is the embryonic period. Okay, so at the time of conception, after conception, the ovum is from the conception to up to 2 weeks of life, it's ovum. The embryonic period is from 3 weeks of life up to 8 weeks of life, and then comes the fetus. So when do you call a fetus? The fetus is from the 9th week of life to the birth. Okay, so we call the fetus. Okay, one important point is what is the perinatal period? So perinatal period is from the 22 weeks of gestation till 7 days after birth is the perinatal period. Okay. Then next question is about the adolescent. Early adolescent ages. So firstly, what is the age group of adolescent? Adolescent is 10 to 19 years of age. Okay. So 10 to 19 years of age के बच्चे को कहते हैं adolescent. अब adolescent can be early adolescence, middle adolescence और late adolescence. So early adolescent कौन होता है? जो 10 to 13 years of age के बच्चे को early adolescent कहते हैं. Middle is from 14 to 16 years of age and late is from 17 to 19 years of age. Okay, so this is adolescent. Okay. Other important periods of growth is neonate किसको कहते हैं? Yes. So the neonate is from birth to 28 days of life तक neonate कहते हैं. And infant किसको कहते हैं? Birth से लेकर 1 year of life तक infant कहते हैं. Okay, so these are some important MCQs that you should remember. So these are the periods we just discussed. Next, the fetal growth is maximally affected by. So you have to name the hormone which maximally affects the fetal growth. Okay, so let's talk about all the hormones that affects the fetal growth. So when we talk about the hormones are insulin like growth factor 1 and insulin like growth factor 2. Second is the thyroxine. Third is the cortisol. And fourth is the growth hormone. So out of these four, the fetal growth is maximally affected by insulin. Okay. The other hormones that determine the fetal growth are thyroxine and cortisol. Students, very important is that the growth hormone has minimal role in the fetal growth, that is intrauterine growth. Okay. So growth hormone का role आता है in the postnatal period. उससे पहले रोल है इंसुलिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल का और उसमें से भी सबसे ज्यादा इंसुलिन का. ओके, सो आंसर इज इंसुलिन. नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग ग्रोथ चार्ट रिप्रेजेंट? ओके, सो यू सी अ ग्रोथ चार्ट जिसमें एक एक्स एक्सिस पे द एज इन इयर्स हैज बीन गिवन. तो आप देख रहे हो कि ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम स्टार्ट हुई अराउंड 10 इयर्स के बाद से. देयर इज अ सडन ग्रोथ बट उससे पहले नहीं था. तो सच काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज सीन इन द गोनाडल ग्रोथ. कि प्यूबर्टी 10 साल के अराउंड जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई उस टाइम पे सडनली ग्रोथ स्टार्ट हुई. सो दिस इज द गोनाडल ग्रोथ. व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर पैटर्न्स ऑफ द ग्रोथ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेट्स से लिम्फॉइड ग्रोथ, सो जब हम लिम्फॉइड ग्रोथ की बात करते हैं, सो लिम्फ ऑर्गन जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है हमारा लाइक टॉन्सिल्स, उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है इन मिड चाइल्डहुड में, दैट इज 4 to 8 years of age. सो इसमें कैसी पीक आएगी? यहां तक तो ऐसा एंड देन सडनली यहां ऐसे पीक ऐसे एंड देन दिस. सो दिस विल बी द ग्रीन वन. दिस विल बी अ पीरियड ऑफ द लिम्फॉइड ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेन ग्रोथ, सो ब्रेन ग्रोथ में क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको रिमेंबर करने हैं वो ये है, जो ब्रेन होता है वो एट 1 month ऑफ लाइफ, बर्थ के 1 month बाद, ठीक है, इट इज
36% ऑफ द अडल्ट ब्रेन साइज होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 ईयर ऑफ लाइफ में ये इंक्रीज होके 72% हो जाता है, दैट इज इट डबल्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड 2 years ऑफ लाइफ पे ब्रेन ग्रोथ इज 83%। ओके, सो सी मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ 2 years ऑफ लाइफ तक हो गई है। तो इसमें जो कर्व आता है, ग्रोथ कर्व आता है, वो आता है कि मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ 2 years तक हो गई है एंड 2 years के बाद फिर फ्लैटनिंग हो जाती है कर्व की। सो दिस ब्लू वन, दिस इज द ब्रेन ग्रोथ। ओके, सो उसके बाद फ्लैटनिंग हो जाती है। सो दिस इज द ब्रेन ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, दैट इज द सोमैटिक ग्रोथ। सोमैटिक ग्रोथ में क्या है आपका कि आपका जो मैक्सिमम बॉडी का हाइट वेट इंक्रीज हो रहा है। सो मैक्सिमम हाइट इंक्रीजेज इन सो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड द सेकेंड स्पर्ट इज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो इस केस में कैसा कर्व होता है कि पहले यहां पे ऐसे करके इंक्रीज होगा, फिर स्टेबल हो जाएगा और प्यूबर्टी के टाइम पे फिर इंक्रीज होगा। Okay, so this is the type of the pattern that you see in the somatic growth. In सब पे questions आए, so you should know about these patterns. Okay. Next. So next is the weight of the newborn quadruples by. So weight हमें पता होना चाहिए newborns का कैसे increase होता है. So मान लो birth weight x है, so it doubles by 5 months of age. So 5 months पे it will be 2x. 1 year पे it's triple, so it's 3x. 2 years पे it's 4 times the birth weight. 3 years पे it's 5 times the birth weight. Students, all these are MCQs, you must know it. Okay, so 4 times the birth weight is at 2 years. So answer this question is 2 years. Okay, next, birth length doubles by what age? Okay, so हम average birth length हम कहते हैं कितनी होती है, 50 centimeters हमारा birth length है ये। ठीक है, so one at birth it is 50 centimeters and by 6 months of life it becomes 65 centimeters. 1 year पे it is 75 centimeters. So 50 to 75 हो गई, 25 centimeter का increase in 1 year. ठीक है, फिर 2 years पे it is 87 centimeters. 3 years पे it is 95 centimeters. And at 4 years it is 100 centimeters. Okay, so 50 centimeter का डबल हो गया 100 centimeter. So birth age doubles by what age? It is 4 years पे डबल हो जाती है birth age. ठीक है, और triples by, तो हम जानते हैं कि 12 years पे the height is 150 centimeters. So it triples by 12 years of age. Now ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आपको आने चाहिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं what is this instrument, students? Yes, so you all must know that this is a infantometer. इन्फेंटोमीटर का क्या रोल होता है? टू टेक द लेंथ ऑफ द चाइल्ड। लेंथ कौन सी एज तक ली जाती है? लेस देन 2 years ऑफ एज में। लेंथ मतलब जो लेटा के लेते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज, दिस इज स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर, ओके, सो स्टेडियोमीटर जो खड़ा होकर हम लेते हैं। खड़े होकर क्या लेते हैं हम? हाइट ऑफ द चाइल्ड। और हाइट कौन सी एज पे लेते हैं? मोर देन इक्वल टू 2 years पे हम हाइट लेते हैं। ओके, एंड यू ऑल मस्ट नो दैट हाइट प्लस 0.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बेबी। सो ये हमेशा याद रखना है। ओके, हमेशा लेंथ बड़ी होती है। सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स टेकिंग द हाइट एंड लेंथ। Now, postnatally, 2 periods of the accelerated growth, very important. So, the 2 important periods in postnatally accelerated growth are, number first is the first year of life, जिसमें हमने बात की थी कि height increase हो गई है 25 centimeters in 1 year. And the second period is the puberty, जब height increase होती है 10 to 12 centimeters per year. So, this is again a MCQ, you must remember it. Okay. Next. जब हाइट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट रेशियो, अगेन एमसीक्यू। सो अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो एट बर्थ कितनी होती है? यू मस्ट नो, इट्स 1.7:1। 3 years ऑफ एज पे इट इज 1.3:1। 6 years ऑफ एज पे इट इज 1.1:1 एंड बाय 7 to 10 years इट इज 1:1। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज वैल्यूज बिकॉज अगेन
These are the MCQs. Next, which carpal bone are you expecting in X-ray wrist of a 2 months old child? So again, carpal bones आपको याद होनी चाहिए. So you all must know the mnemonic. She looks too pretty. Try to catch her. Okay, so this is the mnemonic of the carpal bone when we go from lateral to medial. ठीक है. So this is scaphoid, lunate, triquetral, and pisiform, trapezium, trapezoid, capitate and hamate. सो रिमेंबर करने का तरीका क्या है? आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ऐसे जाएंगे हम. ओके, इस डायरेक्शन में. सो सबसे पहले आपकी आती है कैपिटेट विच अपीयर्स एट 2 months of age. देन कम्स द हैमेट दैट अपीयर्स एट 3 months of age. ओके, pisiform is the last carpal bone to appear that comes at around 9 to 12 years of age. फिर बारी आती है ट्राइक्विट्रल की, दैट अपीयर्स एट 3 years of age. And then comes the lunate that appears by 4 years of age. Now this scaphoid, trapezium, trapezoid ये सब appear होती है 4 to 5 years of age पे. Okay, so the question was the first carpal bone to appear is the capitate. Okay, so 2 months पे आ जाएगी. First carpal bone to appear अगर पूछेगा तब भी capitate है, या फिर indirectly पूछा the carpal bone you are expecting in X-ray of 2 months old is again capitate. So capitate is the answer. तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है. And the last carpal bone to appear is the pisiform that appears at 9 to 12 years of age. Okay. Next, which X-ray is advised for age determination of a 1 to 13 years of old child? Very important again, age determination. हमें बोन एज देखनी होती है इन द चिल्ड्रन ऑफ द शॉर्ट स्ट्रेचर, तो उस केस में हम एक्सरे कराते हैं. तो 1 से 1 to 13 years of age के बच्चे में द प्रेफर्ड एक्सरे साइट इज द एक्सरे रिस्ट. ओके, अगर हमें एक्सरे कराना है न्यूनेट का इन ऑर्डर टू सी द बोन एज, तो हम देखेंगे एक्सरे ऑफ द नी जॉइंट, नी. ओके, लेस देन 1 year ऑफ एज पे हम एक्सरे कब तक किस चीज का कराते हैं? लेस देन 1 year इज द शोल्डर एंड मोर देन 13 years इट इज द एल्बो. तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एक हमारा हैंड है ये मान लो, तो हमने बात की लेस देन 1 year इज शोल्डर, 1 to 13 is the wrist और बीच में है elbow, तो more than 13 years it's elbow. Okay, next, which of the following is not true in assessing the skin fold thickness? तो skin fold thickness देखने के लिए बच्चों which instrument has to be used? Very important. Name this instrument. So this is known as the Herpendence caliper, and this is used to measure the skin fold thickness. तो ये स्किन फोल्ड थिकनेस कौन से एरिया में देख रहे हैं? इन दिस इमेज दिस इज द ट्राइसेप्स. दूसरे एरिया क्या यूज हो सकते हैं? बाइसेप्स को भी यूज किया जा सकता है, सबस्कैपुलर रीजन या फिर सुप्रास्कैपुलर. ऑल दीज एरियाज कैन बी यूज टू मेजर द स्किन फोल्ड थिकनेस. ओके, उसके बाद ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? मेजर्ड एट द लेवल ऑफ ट्राइसेप्स. इट्स ट्रू, इट इज मेजर्ड टू नियरेस्ट ऑफ 1 centimeter. Students, this statement is wrong. It is measured to nearest of the millimeter. Okay, not 1 centimeter. Then the Tanner's chart contains the normal value. This statement is true. Previously we used to do the Tanner's charting. So Tanner's chart और किस चीज के लिए होते हैं? SMR staging के लिए. That is sexual maturity staging के लिए हम Tanner's chart use करते हैं. तो पहले हम टेनर्स चार्ट यूज करते थे, बट नाउ WHO चार्ट्स आर अवेलेबल फॉर द स्किन फोल्ड थिकनेस. ओके, नेक्स्ट इज इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द कैलोरिक रिजर्व ऑफ द बॉडी. अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो द ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, सो दिस इज Herpendence caliper. Again, this instrument you must know. Okay, now name this instrument. So already written, it's a Shakir's tape. Shakir's tape. Okay, so this is used to measure the, very important, it is used to measure the mid arm circumference. कौन use करता है इसको? So periphery में आंगनवाड़ी वर्कर्स इसे यूज करते हैं. जब मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करेंगे तो इसकी कैटेगरीज होती है. लाइक अगर रेड एरिया में, रेड जोन में आया है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, तो इट इलिसिट्स द चाइल्ड इज वेस्टेड. येलो में इट इज बॉर्डर लाइन एंड ग्रीन इज नॉर्मल. ओके,
इसीलिए पेरिफेरल वर्कर्स को ये यूज करने के लिए देते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन में की डेफिनेशन में व्हाट शुड बी द मिड आर्म सर्कमफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So the mid-arm circumference in the definition is less than 11.5 centimeters. Okay. And also mid-arm circumference के भी अब charts, age wise charts available है. The WHO growth charts are now available. Okay. Next. True about the head circumference measurement. So multiple option correct type of question है ये. तो head circumference measurement में क्या क्या true है? Measured at the supraorbital ridge, it's true. So look at this image. So हम कहां से मेजर करते हैं? These are the supraorbital ridge, anteriorly supraorbital ridge और posteriorly occipital protuberance. तो इस तरह से मेजर करते हैं through this flexible non-stretchable tape के through. Okay. Next, it measures the hydrocephalus and microcephaly. It's true. हम head circumference निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि microcephaly है या macrocephaly है. ठीक है, तो इसीलिए हम मेजर करते हैं head circumference. और सीरियल मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा हेड ग्रोथ कैसे हो रही है. इट हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट. ट्रू. एंड इट इज अ इंडिकेटर ऑफ ब्रेन ग्रोथ. एब्सोल्युटली ट्रू. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके. सो हम जब हेड सर्कमफेरेंस इस पे मेजर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज कैसे होता है स्टूडेंट्स एज वाइज. सो बर्थ पे कैसे होता है, कितना होता है? इट इज 33 to 35 सेंटीमीटर्स एट बर्थ. फिर कैसे इंक्रीज होता है? इन फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ इट इंक्रीजेस 2 सेंटीमीटर पर मंथ. ओके. नेक्स्ट 3 months मतलब 4 to 6 months में फिर कितना इंक्रीज होता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ. उसके बाद नेक्स्ट 6 months मतलब दैट इज 7 to 12 months ऑफ एज तक इट्स इंक्रीजेस 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ. तो पूरे 1 year में कितना इंक्रीज हो गया? इट इंक्रीजेस बाय 2 3 just 6 9 and 3 10 11 12. So 12 सेंटीमीटर पूरा 1 year में इंक्रीज हो गया. सो गैस अगर बर्थ पे 33 सेंटीमीटर है हेड सर्कमफेरेंस, तो 1 year ऑफ एज पे कितना हो जाएगा? 33 + 12 दैट इज 45 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके. तो इस तरीके से तो 1 year पे 12 सेंटीमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 2 years तक बढ़ता है 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ की ग्रोथ से बढ़ता है. 5 years पे इट इज 50 सेंटीमीटर्स. ओके, दैट इज द मैक्सिमम वन. ये आपको याद रखना है. ठीक है. सो हेड सर्कमफेरेंस अगेन इट्स अ एमसीक्यू कि कब कितना होता है, तो ये आपको यू हैव टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट, ऑल आर द यूनिक फीचर्स ऑफ WHO ग्रोथ चार्ट्स ऑफ 2006 एक्सेप्ट. सो WHO ग्रोथ चार्ट जो हम यूज करते हैं वो 2006 में 2006 में आए थे. एंड दीज आर यूज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ लेस देन इक्वल टू 5 years ऑफ एज. 5 years के बाद हम यूज करते हैं IAP ग्रोथ चार्ट्स. तो 5 to 18 years ऑफ एज में यूज IAP ग्रोथ चार्ट्स. ओके. सो यूनिक फीचर एक्सेप्ट, तो फॉल्स बताना है हमने. ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स आर टेकन एज द नॉर्मेटिव ग्रोथ मॉडल. इट्स ट्रू स्टेटमेंट. ओके. सैंपल कलेक्शन फ्रॉम 6 states in US. सो स्टूडेंट्स दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि 6 स्टेट US के नहीं यूज हुए हैं, 6 countries were there. And in order to remember these countries, there's a mnemonic: big no to United States. Okay. So B for Brazil, I for India, G for Ghana, N for Norway, O for Oman, and United States. So these are the 6 countries that were used for the sample collection, not 6 states. It includes new indicators such as skin fold thickness. जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि skin fold thickness के WHO charts आ गए हैं. तो स्किन फोल्ड थिकनेस अब इंक्लूडेड है. पहले टैनर चार्ट्स यूज करते थे. एंड इट रीइंट्रेट्स द चिल्ड्रन ग्रो सिमिलरली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इट्स ट्रू. ओके. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट बी. सो लुक एट द चार्ट्स. तो WHO ग्रोथ चार्ट्स में कैसे होता है? द कलरिंग देखो आप. पिंक कलर हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, बॉयज के लिए देयर इज अ ब्लू कलर. एक्स एक्सिस पे यू नो दिस इज द एज. दिस एक्स एक्सिस पे हमने एज दिया है. वाई एक्सिस पे पैरामीटर होता है, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो आप वेट है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, जो भी है, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे हो जाता है. एंड देन वी प्लॉट इट. लाइक कैसे प्लॉटिंग करते हैं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में शॉर्ट स्टेचर के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं. लाइक इट्स कंप्लीटेड वीक्स और मंथ. लाइक 4 months पे अगर मैं कहती हूँ कि बच्चे का वेट है 5 kgs. ओके. अगर 4 months पे आई से दैट बच्चे की लेंथ है 60 सेंटीमीटर्स,
तो कैसे मेजर करेंगे, हम यहाँ पे 60 देखेंगे, दिस इज 55 एंड दिस इज 60, ओके। सो यहाँ से एक लाइन डायरेक्टली ऐसे हम करेंगे और एक लाइन यहाँ से डायरेक्टली ऐसे हो गई। सो दिस इज द प्लॉटिंग, सो यहाँ पे दिस इज द प्लॉटिंग। तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं एंड देन वी सी द इन्फेरेंस, ओके। तो लेस देन थर्ड सेंटाइल अगर जाता है तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द शॉर्ट स्टेचर, ओके। सो ग्रोथ चार्ट्स वी टॉक्ड अबाउट, WHO ग्रोथ चार्ट्स लेस देन 5 इयर्स में यूज करते हैं ब्रेस्ट फेड बेबीज में, 6 कंट्रीज में हुआ था ट्रायल, एंड इंडियन ग्रोथ चार्ट्स, IAP ग्रोथ चार्ट्स आर यूज्ड आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट डेंटिशन आर ऑल एक्सेप्ट, ओके। सो डेंटिशन के बारे में जब हम बात करेंगे, सो फर्स्टली टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डेंटिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्राइमरी डेंटिशन इज जो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ, एंड देन द सेकेंडरी डेंटिशन आर द परमानेंट टीथ। सो फर्स्ट मिल्क टीथ appears at 6 to 7 months and secondary teeth also appears at 6 years। तो पहला मिल्क टीथ कौन सा होता है, उसके लिए एक निमोनिक है LIC पहली पॉलिसी लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी सब बच्चों को पता होता है। तो लोअर central incisor, okay, so LIC you have to remember lower incisor central one, so this is the first teeth to appear, okay, and secondary dentition का first teeth is the first molar to appear। अब important is कि primary dentition में कभी भी premolars नहीं आते, so the last teeth to appear in the primary dentition is the second molar, और secondary dentition में last teeth to appear is third molar, okay। then primary dentition it covers by 2.5 से 3 साल पे सारे 20 के 20 टीथ आ जाते हैं जो प्राइमरी डेंटिशन के होते हैं, क्योंकि प्री मोलर्स नहीं होंगे आपके और आपके थर्ड मोलर्स नहीं होंगे, तो 20 टीथ बचते हैं। तो 20 टीथ 0.5 to 3 years तक प्राइमरी डेंटिशन इज कंप्लीट। सेकेंडरी डेंटिशन कंप्लीट्स बाय 12 years एक्सेप्ट द थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर तो कई बार 18 years तक भी आ सकते हैं, ओके। सो इट्स 12 years तक कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्ट द थर्ड मोलर, एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ 28 से 32 तो टोटल टीथ होते ही है। इफ द मोलर्स थर्ड मोलर्स हैव अपीयर्ड तो 32 नहीं तो 28, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ डेंटिशन, सो एब्नॉर्मैलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका डिलेड डेंटिशन। सो डिलेड डेंटिशन की अगर हम बात करें, डिलेड कब कहते हैं, कोई बच्चा अगर आता है और डिलेड डेंटिशन कब कहते हैं, तब कहते हैं अगर एक भी दांत 13 months ऑफ एज तक नहीं आया होगा, तो 13 months इज द एज लिमिट फॉर द डिलेड डेंटिशन। एंड इन ऑर्डर टू रिमेंबर द कॉजेज ऑफ द डिलेड डेंटिशन, द निमोनिक इज कम डियर फ्रेडी, ओके, कम डियर फ्रेडी। सो कम डियर, CD से देयर इज क्लीडो क्रेनियल डिस्प्लेजिया, ठीक है। F से फैमिलियल, कि कहे कि फैमिली में ही लेट आते हैं, फैमिलियल। R for rickets। E for you have the endocrinal causes। एंडोक्राइनल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिमेंबर, हाइपोथायरॉयडिज्म, hypoPituitarism, very important to remember, okay। Then D for Down syndrome and I for idiopathic। So these are the causes for the delayed dentition, ठीक है। अब हम अगर इस स्टेटमेंट्स की बात करें, द हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज द डिलेड डेंटिशन, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Premolar is not seen in the primary dentition, it's again a true statement। The third molar is last to appear in the secondary dentition, yes, it's a true one। And canine is the first in primary dentition, so this is false, because I told you LIC, lower incisor central, is the first teeth to appear in the primary dentition, ठीक है, ये हो गया। So abnormal dentition में next look at this teeth। So ये कौन से teeth हैं, can you notice this notching in the incisors, जो incisors पे notching है, so these are the Hutchinson's teeth। तो किस में मिलते हैं Hutchinson's teeth? It is seen in the cases of congenital syphilis, okay। और Hutchinson's triad क्या होता है जो congenital syphilis में देखते हैं, तो it consists of Hutchinson's teeth, number second is the sensorineural hearing loss, that is sensorineural deafness, and number third is the interstitial keratitis। सो आंख गई कान गया
और दांत गए. So this is the triad that you see in the congenital syphilis, that is the Hutchinson's triad. And Hutchinson's teeth कौन से होते हैं? जिसमें नोचिंग इन द इंसाइजर्स प्रेजेंट होती है. ओके, उसके बाद लुक एट दिस टीथ. तो ये कौन सा टीथ है जिसको एरो किया गया है? सारे टीथ बाकी हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा टीथ है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुपर न्यूमररी टीथ. ठीक है, दैट इज एक एक्स्ट्रा टीथ दैट इज प्रेजेंट. सो इसमें अब क्वेश्चंस आते हैं कि विच इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ दिस सुपर न्यूमररी टीथ. सो द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज द मैक्सिलरी इंसाइजर्स. सो देखो ये भी अभी मैक्सिला में प्रेजेंट है, ऊपर के दांतों में मैक्सिला में प्रेजेंट है, इंसाइजर्स के बीच में. ओके, सो इसका निमोनिक है मिस. सो मैक्सिलरी इंसाइजर्स सुपर न्यूमररी टीथ. ओके, मिस. सो और ये किस में मिलता है? उसके लिए निमोनिक है गार्ड 3Cs. ओके, सो गार्ड से देयर इज गार्डनर सिंड्रोम एंड 3Cs. सो एक सी तो हो गया आपका क्लीडोक्लेनियल डिस्प्लेजिया, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पालेट. ओके, सो दीज आर द 3Cs जिसके अंदर सुपर न्यूमररी टीथ मिलते हैं. गार्डनर सिंड्रोम, क्लीडोक्लेनियल डिस्प्लेजिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पालेट. गार्डनर सिंड्रोम में और क्या मिलता है इसके अलावा? एक तो सुपर न्यूमररी टीथ तो आपने बता ही दिया है कि ये मिल सकता है. उसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स होती हैं? सो पॉलीपोसिस का, कोलोरेक्टल पॉलीपोसिस होते हैं इसमें, है ना. सो कोलोरेक्टल पॉलीपोसिस plus there is desmoid tumor plus soft tissue tumors can be seen. Soft tissue tumors can be seen. Okay, next look at these teeth. ये एक न्यूबॉर्न बॉर्न हुआ और उसी के अंदर आपने टीथ देख लिए, तो दिस इज नोन एज द नेटल टीथ. जो बर्थ पे ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें नेटल टीथ कहते हैं. और जो टीथ बर्थ के बाद फर्स्ट मंथ ऑफ एज में अपीयर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूनेटल टीथ. न्यूनेट में अप्लाई हुए है ना, इसलिए न्यूनेटल टीथ. उसके बाद क्वेश्चन आता है नेटल टीथ के कॉजेस क्या है? सो द निमोनिक इज सीप. एस फोर्थ सोटोस सिंड्रोम. सोटोस सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल जाइजेंटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टॉल स्टेचर. E4 देयर इज एलिस वैन Creveld syndrome. Again E4 epidermolysis bullosa, and P4 there is Perry-Robin sequence, very important. So this is the natal teeth के causes. So important, remember the mnemonic is SEEP. So students, अब इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? That this girl is able to फ्यूज द शोल्डर्स. ओके, तो अब देख रहे हो दोनों शोल्डर्स को आपस में फ्यूज कर पा रही है. सो दिस इज द कंडीशन दैट इज सीन इन द केसेस ऑफ द क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया. ओके, सो क्लीडो मीन्स क्लैविकल. सो ये फ्यूज कब कर पाएगी? जब क्लैविकल बोन हमारी एब्सेंट होगी. सो बिकॉज दोनों शोल्डर्स के बीच में क्लैविकल बोन होती है ना, तो क्लीडो मीन्स क्लैविकल. सो देयर इज एब्सेंट क्लैविकल इन दीज पेशेंट्स. Okay, then comes the cranial part. So cranial में there is delayed closure of the anterior fontanelle. Okay, delayed closure of anterior fontanelle or large anterior fontanelle is present. Okay, next there is dental abnormalities in these patients. Okay, so dental abnormalities में क्या होता है? अभी we talked about. So there can be the presence of the supernumerary teeth or there can be delayed dentition. Also various skeletal abnormalities, skeletal dysplasias are also seen in this patient. Okay, so this is about the cleidocranial dysplasia. Next look at these images. So this क्या इसमें क्या mention, क्या क्या दिख रहा है आपको? So can you make out 1 2 3 4 5 6 polydactyly that is present? So polydactyly नजर आ रही है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 fingers are polydactyly. उसके अलावा कैन यू मेक आउट दीज डिस्प्लास्टिक नेल्स? ओके, सो डिस्प्लास्टिक नेल्स प्रेजेंट है. डेंटल एबनॉर्मैलिटीज. ओके, ऑल्सो अ शॉर्ट स्टेचर इज प्रेजेंट. और मेन प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है? कैन यू मेक आउट
कि proximal part of the limb is normal but the problem is with the middle and the distal segment. Okay, so यहाँ पे shortening है mainly. So we are talking about the Alice Van Creveld syndrome. So जब हमें Alice Van Creveld syndrome अगर learn करना है तो उसमें 3 important features होते हैं. Number first is there is skeletal dysplasias are there. Skeletal dysplasia is there. Okay, so skeletal dysplasia में आपका हो गया short stature, और short stature में भी जैसे हम achondroplasia में कहते हैं proximal limb की thickening है, rhizomelic shortening is there, नहीं, यहाँ पे middle and distal segment की shortening है. Okay, short stature है. And number second is with the polydactyly there that is present. That is the skeletal dysplasia present. Number second is there the ectodermal dysplasia is present in the form of nail and dental dysplasias. Okay, and number third is the cardiac defects, cardiac defects. Okay, so these are the 3 important features of the Alice Van Creveld syndrome. So Alice Van Creveld syndrome अभी हमने dentition में कहाँ पढ़ा था? In the patients of natal teeth. So natal teeth में mnemonic था ना seep. So S for Sotos, E for Alice Van Creveld syndrome. Okay, so that is this syndrome. Next, अभी हमने seep की जब बात की तो उसमें P is the Pere-Robin sequence. So P for Pere-Robin sequence. तो इसमें basically क्या रहता है Pere-Robin sequence में? There is micrognathia and retrognathia. So micrognathia होता है, micrognathia is that is the mandible is small mandible, और retro is पीछे को सर की होती है mandible. Retrognathia is present. Okay, so micrognathia, retrognathia with a high arched palate. There is a high arched palate present, can be associated with the cleft palate. And number third feature is the glossoptosis. That is जो टंग होती है इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड्स, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पेरे-रॉबिन सीक्वेंस. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, द टंग साइज इज नॉर्मल बट बिकॉज माउथ का साइज एज कम्पेयर स्मॉल होता है बिकॉज ऑफ द रिसीडिंग चिन. ठीक है, माउथ का साइज छोटा होता है तो उसके कंपैरिजन में टंग साइज अपीयर्स लार्ज एंड द टंग हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हो सकते हैं एंड एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इन बच्चों में. सो दिस इज द पेरे-रॉबिन सीक्वेंस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट स्टेचर. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द शॉर्ट स्टेचर, सो डेफिनेशन में क्या होता है, हाइट ऑफ लेस देन थर्ड परसेंटाइल or less than -2 standard deviation for that age and sex is known as short stature. Okay, so percentile में third और standard deviation में less than -2 standard deviation known as the short stature. अब short stature को हम divide कैसे करते हैं? short stature है अगर तो it can be a proportionate short stature or disproportionate short stature. Proportionate on the basis of the upper segment is to lower segment ratio. Okay, सो शॉर्ट स्टेचर आया, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो देखी, अगर वो नॉर्मल फॉर एज है दैट इज द प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, और अगर वो ऑल्टर्ड है, ऑल्टर्ड फॉर दैट एज दैट इज द डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर. ओके, हो गया. अब नेक्स्ट इज जो प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रोपोर्शनेट कैन बी फिजियोलॉजिकल और अ पैथोलॉजिकल वन. ओके, तो फिजियोलॉजिकल प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर के 2 कॉजेज होते हैं. नंबर 1 इज द फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर एंड नंबर 2 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टेचर. इट्स एमसीक्यू. ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, अ पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर कैन बी बिकॉज ऑफ द इंट्रायूट्राइन कॉजेज or it can be due to acquired causes. अब इंट्रायूट्राइन क्या क्या हो सकता है फॉर द शॉर्ट स्टेचर? या तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, कंजेनाइटल इन्फेक्शंस, एंड थर्ड आर 3 important syndromes, the mnemonic being STD: Seckle syndrome, Turner syndrome
and Down syndrome. So these are the three important syndromes associated with the pathological proportionate type of short stature. Okay. Acquired causes में क्या होता है? Chronic illness हो गई, कोई भी chronic illness, heart disease हो गई, kidney disease हो गई, या फिर malnutrition, psychosocial dwarfism, and last important is the endocrinal causes. So endocrinal में सबसे important है growth hormone deficiency. Again very very important. Okay. So क्यों important है कि growth hormone deficiency leads to a proportionate type of short stature. Okay. Number second is the hypothyroidism, thyroid की deficiency. Number third is the Cushing disease, very important. Okay, so these three you have to remember the endocrinal causes. Okay, so this is about the proportionate short stature. अब बारी आई disproportionate short stature की. So disproportionate again, जब हमने क्या कहा, upper segment is to lower segment ratio altered है for that age. Okay, तो अब या तो ये increase हो सकती है upper segment lower segment ratio, या decrease हो सकती है. ठीक है, तो increase कब होगी? जब हमारा अपर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा, तो दैट इज द, और डिक्रीज कब होगी? जब अपर सेगमेंट छोटा हो जाएगा. सो अपर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा, लोअर सेगमेंट छोटा हो जाएगा, तो दिस इज द शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रंक ड्वार्फिज्म. अब इसको लर्न करने के लिए वी हैव अ निमोनिक. सो आपको हमेशा ये तो रिमेंबर रहता है कि लिम्स हमारे रिकेट्स के केस में छोटे रहते हैं बिकॉज ऑफ द बो लेग्स प्रेजेंट. ओके, सो इसका निमोनिक आप रोका याद रखेंगे. R4 रिकेट्स से याद रहता है रोका. ओके, सो शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म जिसमें अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट बड़ी हो जाएगी, रोका. सो R4 रिकेट्स. O4 ऑस्टियोजेनेसिस imperfecta. C4 congenital hypothyroidism, also known as cretinism, and A4 you have achondroplasia, very important. Okay, and short trunk dwarfism के causes में क्या होता है? Always remember mucopolysaccharidosis, MPS is a very important cause of short trunk dwarfism. MPS. अब जो इसमें S है ना, इससे हमें याद रखना है, एक तो स्पाइन एबनॉर्मैलिटीज, बीट हेमी स्पाइन, हेमी वर्टिब्री और केरीज स्पाइन. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज स्पॉन्डाइलो एपीमेटाफाइसियल डिस्प्लेजिया. स्पॉन्डाइलो एपीमेटाफाइसियल डिस्प्लेजिया. सो 2S अलोंग विद MPS, ये याद रखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे एक और बात, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में कोई बता पाएगा इसमें क्या होता है? द ट्रायड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. सो यू ऑल नो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज आल्सो नोन एज ब्रिटल बोन डिजीज, BBD. सो यही इसका निमोनिक है, BBD, ब्रिटल बोन डिजीज. सो B4 ब्रिटल बोन, दैट इज द फ्रेजाइल बोन दैट इज प्रेजेंट. देन B4 ब्लू स्क्लेरा, and BBD, D for deafness. Okay, so this is the triad and there is problem with which collagen students? Collagen 1. ठीक है, so 1 number collagen में problem होती है इसमें. हो गया ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ओके, नेक्स्ट अब हमने बात की थी जब फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर की प्रोपोर्शनेट टाइप, तो हमने बोला था कि दो नेचुरल वेरिएंट्स है, फैमिलियर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी. And this constitutional delay in growth and puberty is the most common cause of the short stature. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, both are equally, like सबसे important है length at birth is normal in both familial as well as constitutional one. Family history of short stature is present in the familial one, and in constitutional family history of the delayed puberty is present. Parents, फैमिलियल में पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल में इट विल बी एवरेज बिकॉज फाइनल हाइट कॉन्स्टिट्यूशनल में नॉर्मल रहती है बट फैमिलियल में शॉर्ट रहती है. हाइट वेलोसिटी नॉर्मल होगी बट डिलेड प्यूबर्टी होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर इज द बोन एज.
Bone age is equal to chronological age in the familial one, but bone age is less than chronological age in the constitutional delay in growth and puberty. So students, जो मोटा मोटा आपको याद रखना है वही रहता है, फैमिलियल में पेरेंट्स भी शॉर्ट होते हैं जिसकी वजह से टारगेट हाइट शॉर्ट हो जाती है और बच्चा उस छोटी हाइट की ट्रेजेक्ट्री पे ही चलता रहता है. तो ये दिस इज द फैमिलियल. तो छोटे हैं पेरेंट्स तो ये नीचे ही, दिस इज द थर्ड परसेंटाइल, सो नीचे ही रहेगा और टारगेट हाइट विल ऑल्सो बी ऑलवेज लेस. बट कॉन्स्टिट्यूशनल में इनिशियली कम होके फिर टारगेट हाइट नॉर्मल हो जाती है, बट देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड प्यूबर्टी इन दीज चिल्ड्रन. ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिलियल में योर बोन एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, बट कॉन्स्टिट्यूशनल में बोन एज विल बी लेस देन द क्रोनोलॉजिकल एज. ओके. सो फ्यू वर्ड्स अबाउट द achondroplasia. जब हमने बात की achondroplasia की, सो achondroplasia, so A and D sounds are very prominent. It's a autosomal dominant disorder which is because of the mutation in FGFR3 gene, that is fibroblast growth factor receptor 3 gene. Okay, so इसमें प्रॉब्लम होती है और disorder can be recognized at birth by the presence of features of there is macrocephaly with a prominent forehead. Okay, there is short stature present है. With which type of short stature? There is the short limb dwarfism is present. With जो dwarfism है because of the rhizomelic shortening, the proximal segment of the limbs are shortened, so rhizomelic shortening is present with the bow legs present. Okay, सो इसको रिमेंबर करने का एक और हैंड्स में एबनॉर्मैलिटी क्या मिलती है हमें? ट्राइडेंट हैंड्स आर प्रेजेंट. ट्राइडेंट हैंड इज की जो फिंगर्स है वो 3 की कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर. तो उसकी वजह से 3 ग्रुप्स में ऐसा लगता है फिंगर्स डिवाइडेड है. ओके, सो दिस इज द ट्राइडेंट हैंड प्रेजेंट. सो द ट्राइडेंट हैंड दैट कैन बी सीन ओवर देयर. एंड हमारे एक्सरे पे वी हैव द 3 इंपॉर्टेंट साइंस. नंबर फर्स्ट इज दिस इज द शैंपेन ग्लास अपीयरेंस. ओके, सो दिस इज द शैंपेन ग्लास पेल्विस. This is the chevron sign which is seen in the distal metaphysis of the femur bone, and normally the interpedicular distance in the lumbar vertebrae increases in normal humans, but achondroplasia mein it decreases. Okay, so these are the 3 important radiological signs. So mnemonic क्या है इसका? To see the mist. So 2 C's से we have the champagne glass appearance and the chevron sign. M for macrocephaly. M for motor milestones delayed. So motor milestones delayed है, but I for intelligence is normal in these children and interpedicular distance decreases. S4 there is short stature. किस तरह का short stature होता है? Short limb dwarfism is present with rhizomelic shortening and bowing legs are present. And T4 there is trident hand. Okay, so to see the mist is the mnemonic to remember the achondroplasia. Next, look at this syndrome, students. So this is, we talked about this is Seckle syndrome. सेकल सिंड्रोम अभी हमने बात की ना कि 3 सिंड्रोम्स जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर प्रेजेंट होता है, एसटीडी, उसमें हमने सेकल सिंड्रोम की बात की. सो सेकल सिंड्रोम. तो ये इमेज देखकर आपको क्या दिमाग में आ रहा है? आपको एक तो माइक्रोकेफली याद नजर आ रही है एंड दिस बीकिंग ऑफ द नोज प्रेजेंट है. ओके, सो इसका सेकल सिंड्रोम का अदर नेम इज बर्ड हेडेड ड्वार्फिज्म. ठीक है, तो बर्ड की शेप का हेड है बच्चे का, छोटा हेड है. ओके, बर्ड हेडेड ड्वार्फिज्म. सो द निमोनिक टू रिमेंबर सिकल सिंड्रोम इज द माइक्रो बर्ड. ओके, सो माइक्रो से देयर इज माइक्रोकेफली प्रेजेंट एंड माइक्रो गनेथिया प्रेजेंट. ठीक है, सो छोटा मैंडिबल भी प्रेजेंट है. एंड बर्ड, सो बर्ड टाइप का, बर्ड की तरह का छोटा फेस होता है इन बच्चों का. एंड B4 देयर इज बीकिंग ऑफ द नोज, बीक नोज. एंड RD मीन्स रिटार्डेशन. सो मेंटल रिटार्डेशन इज प्रेजेंट इन दीज चिल्ड्रन. सो माइक्रो बर्ड इज द निमोनिक टू रिमेंबर द सेकल सिंड्रोम. नाउ वेरी क्विकली, टॉल स्टेचर की डेफिनेशन क्या होती है? शॉर्ट स्टेचर हमने बताया लेस देन थर्ड परसेंटाइल या लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन.
So tall stature is more than +2 standard deviation is known as the tall stature. एंड इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है टॉल स्ट्रेचर पे जनरली कि व्हाट आर द कॉजेज द सिंड्रोम्स दैट लीड टू टॉल स्ट्रेचर. तो वेरी क्विक निमोनिक. सो मंकी went market to buy surf. फनी निमोनिक है तभी याद रहेगा. ओके. So this M for Marfan syndrome, this K for Klinefelter. अच्छा, मार्फन के साथ हमेशा होमोसिस्टीन याद रखना बिकॉज हमें पता है इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिंग फीचर्स हम पढ़ते हैं. ओके, दोनों में ही मार्फनॉइड हैबिटस होता है. तो मार्फन, क्लाइनफेल्टर. W for you have a Weaver syndrome. M for McCune-Albright syndrome. Then this B for you have Beckman-Widman syndrome. And this S for Sotos syndrome. Okay, Sotos syndrome. And then this F for Fragile X syndrome. So remember there are total में 8 syndromes are there जो आपको याद रखनी है with the tall stature. Marfan with homocysteine urea, Klinefelter, Weaver, McCune-Albright syndrome, B for Beckwith-Widman syndrome, S for Sotos syndrome, and F for the Fragile X syndrome. Okay, so these are the syndromes that are associated with the tall stature. So students, after the tall stature, let's quickly move to the next topic, that is the gross motor milestones. Okay, so look at this image. What does this image elicit? क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है इसमें? Okay, so this is known as the ventral suspension. ठीक है, बच्चे को वेंट्रल एस्पेक्ट से पकड़ के ऐसे सस्पेंड किया हुआ. दिस इज वेंट्रल सस्पेंशन. ओके, so when we see check the development of the baby 1 month old to 3-4 months. Okay, so at that time ventral suspension is helpful. तो इसमें क्या, what do we have to see कि जब हमने बेबी को उल्टा किया देन वी सी दैट हेड का लेवल एंड ट्रंक का लेवल आपस में कैसा है. ओके, इन दिस इमेज कैन यू मेक आउट दैट द हेड एंड द ट्रंक are at the same level. So through it you can make out that the age of the baby must be 2 months. Okay, 1 month का बेबी का हेड और ट्रंक सेम लेवल पे होगा ही नहीं, इट विल फॉल डाउन. तो ये 1 month रहेगा. एंड 3 months इट विल बी अबव द लेवल ऑफ दैट इज ट्रंक. सो ये 3 months होगा अगर इस तरह से होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द वेंट्रल सस्पेंशन. सो एट 1 month it will be below, the head will be below the level of that of the trunk. At 2 months it will be at the level of the trunk, and at 3 months it will be above the level of the trunk. Okay, now coming to the next. So what is this procedure? This is known as the pull to sit. Okay, so in pull to sit what we see is again कि head lag क्या रहेगा with the rest of the body. ठीक है, so in 1 month old baby what you see is a complete head lag कि बिल्कुल भी उसे अपनी neck control है ही नहीं because so complete head lag will be there. At 2 months there will be a slight head lag. Okay, so this seems to be 2 months old baby. Okay, 3 months पे भी head lag रहता है. Next 4 months पे क्या होता है कि initially there will be a lag. Initially जैसे as soon as you hold the baby na pull to sit, so initially there will be a lag and then head will be in the level of rest of the body. Okay, and at 5 months there will be no head lag because 5 months पे complete neck holding आ जाती है. It starts by 3 months but it is completed by 5 months of age neck holding. Okay, so look at this image, there is no head lag as such. So this is a baby of 5 months of age. Okay, next. So अब हमने बात की neck control की. So it starts by 3 months, it completes by 5 months, and 5 months पे एक और चीज जो आती है that is foot to mouth. बच्चे अपने फुट को माउथ में लेना शुरू कर देते हैं. So 5 months पे next is the foot to mouth. Okay,
5 months के बाद then 6 months पे what appears is what this milestone is. So this is sitting with support. So you all can see that the baby is sitting with the support of the hands in a tripod type of fashion. So this is sitting with support. Okay. And this milestone appears at the age of 6 months. Sitting with support. Then look at this milestone now. This is known as sitting without support. Okay. So sitting with support comes at 6 months and sitting without support comes at 8 months. Okay. और जब सिटिंग विदाउट सपोर्ट आया कि अपने ही अपनी बॉडी का बैलेंस बना के बच्चा बैठा है, हैंड से कोई सपोर्ट नहीं लिया, दैट इज सिटिंग विदाउट सपोर्ट. एट द सेम टाइम कम्स द माइलस्टोन ऑफ क्रॉलिंग. अब क्रॉल करना भी आ जाता है बच्चे को. तो क्रॉलिंग में क्या रहता है बेसिकली कि क्रॉलिंग में द एब्डोमेन एंड चेस्ट ऑफ द बेबी टचेस द फ्लोर. ओके, सो दैट इज क्रॉलिंग. अभी हम क्रीपिंग की भी आगे बात करेंगे. आई विल डिस्टिंग्विश द टू. ओके. सो अब बच्चे को क्या आया है, बच्चे को अब सिटिंग विदाउट सपोर्ट आ गया. तो अब आई बारी स्टैंडिंग की. सो नेक्स्ट माइलस्टोन इज स्टैंडिंग विद सपोर्ट. तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट कब आएगा? 9 मंथ्स पे, क्योंकि 8 मंथ्स पे हमने बात की सिटिंग विदाउट सपोर्ट एंड क्रॉलिंग हो गया. अब 9 मंथ्स पे देयर विल बी स्टैंडिंग विद सपोर्ट. ओके, सो ये हो गया स्टैंडिंग विद सपोर्ट एट 9 मंथ्स ऑफ एज. अब स्टैंडिंग विद सपोर्ट हमें आ गया. अब स्टैंडिंग विद सपोर्ट के साथ अब नेक्स्ट इज, अब this milestone is known as creeping, which comes at 10 months of age. 10 months पे आता है आपका creeping. So creeping में क्या है देख रहे हैं आप? The chest and the abdomen is above the level of the floor. It's not touching it. This is creeping. Crawling क्या होता? अगर ये दोनों टच कर रहे होते फ्लोर को तो उसे हम crawling कहते हैं. Okay. So standing with support आ गया 9 months पे, फिर 10 months पे आ गया creeping. Okay. फिर 11 मंथ्स पे स्टूडेंट्स, 11 मंथ्स पे कौन सा माइलस्टोन आता है? सो 11 मंथ्स पे दिस माइलस्टोन इज नोन एज पिवटिंग. पिवटिंग. ओके, सो पिवट करना, अपने ही एंगल पे ट्विस्ट करना, ट्रंक को ट्विस्ट करना, दैट इज पिवटिंग. दैट कम्स एट 11 मंथ्स ऑफ एज. ठीक है. एंड अनदर माइलस्टोन इज क्रूजिंग. क्रूजिंग इज फर्नीचर को पकड़ पकड़ के जब बच्चे चलते हैं, दैट इज क्रूजिंग. अगेन 10 to 11 मंथ्स ऑफ एज. सो दोनों माइलस्टोन्स 10 to 11 मंथ्स ऑफ एज पे आते हैं. ओके, क्रूजिंग. एंड उसके बाद कम्स द माइलस्टोन ऑफ, अब हमने कहा था स्टैंडिंग विद सपोर्ट. नाउ एट 1 year ऑफ एज देयर इज स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट एंड दिस बेयर वॉक इज देयर. दिस इज नोन एज बेयर वॉक. Okay, so standing without support, bear walk and walking. अब walking आ गई with support. ठीक है, तो पहले ऐसे याद करना है, पहले sitting आई, फिर standing and now walking. So अब walking with support आ गई है because standing without support आ गई है. ठीक है, 1 year of age पे. ठीक है, तो हमने यही बात की. 8 months पे sitting without support and crawling, 9 months पे stand with furniture holding, 10 months पे creeping आई, 11 month के around there is pivoting and cruising. Okay, then 12 months पे they standing without support आ गया and walking with support आ गया. There is a bear walk. Done. उसके बाद नेक्स्ट है अब 13 मंथ्स पे इंडिपेंडेंट वॉकिंग. 12 मंथ्स पे था वॉकिंग विद सपोर्ट, नाउ वॉकिंग विदाउट सपोर्ट. इंडिपेंडेंट वॉकिंग एट 13 मंथ्स एंड 18 मंथ्स पे देयर इज रनिंग. ठीक है, तो अब हम नॉर्मल पे आ गया. अब हम बात करते हैं स्टेयर्स की. बात आ गई अब. सो 15 मंथ्स पे, 13 मंथ्स पे जब वॉकिंग विदाउट सपोर्ट आ गया, अब 15 मंथ्स पे देयर इज क्रीपिंग ऑन द स्टेयर्स आ गया एंड 18 मंथ्स पे स्टेयर्स विद सपोर्ट आ गया. सो होल्डिंग रेल्स, सो स्टेयर्स विद सपोर्ट आ गया इन 18 मंथ्स. ठीक है. देन 2 years पे स्टेयर्स विदाउट सपोर्ट. सो अप एंड डाउन स्टेयर्स दोनों कर लेते हैं विद 2 feet per step at 2 years of age. Okay. And the 2 important milestones, again remember these, walking backward and kicks a ball comes at 2 years of age. Okay. Then up and down stairs 2 feet per step at 2 years. Then 3 years pe upstairs with 1 feet per step and rides tricycle. So 3 years hai to 3 se tricycle, rides tricycle. Okay. Then 4 years pe skips on 1 foot, also known as hopping. So एक पैर पे कूद सकता है. And now downstairs also 1 foot
per step at 4 years, and then 5 years पे comes the skipping, कि दोनों पैरों पे कूद सकता है. Okay, so this is how you have to remember the gross motor milestones. Okay, now next we will talk about the fine motor milestones. So students, now let's talk about the fine motor milestones. Okay, gross motor complete हो गया, अब हम बात करेंगे fine motor milestones की. सो फाइन मोटर माइलस्टोन्स इज जो हम हैंड से करते हैं. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियली अ पामर ग्रैस्प इज प्रेजेंट. ग्रैस्प रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ग्रैस्प रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, जिसमें बच्चा अपना हैंड बंद रखता है. तो एट बर्थ तो ग्रैस्प रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. सो दिस जो हमारा ग्रैस्प रिफ्लेक्स होता है ये अपीयर कितनी एज पे होता है, इंपॉर्टेंट. इट स्टार्टिंग अपीयर एट 28 वीक्स ऑफ लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ. 32 वीक्स तक ये मैच्योर हो जाता है एंड इट डिसअपियर्स बाय 2 to 3 months ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ, पर ये डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, दिस इज द पामर ग्रैस्प रिफ्लेक्स. ओके, सो जब तक ग्रैस्प रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो बच्चा अपने पाम्स को बंद रखता है. सो 1 month ऑफ एज पे ये है. 3 months पे जब डिसअपियर हुआ तो हैंड रिगार्ड आ जाता है. हैंड रिगार्ड इज चाइल्ड नोटिसेस हिज और हर हैंड्स, अपने हैंड्स को देखता है. ठीक है, तो हैंड रिगार्ड इज नॉर्मल अप टू 5 months ऑफ एज, उसके बाद एबनॉर्मल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद 3 months के बाद 4 months पे क्या होता है कि बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है बट इट ओवरशूट्स द ऑब्जेक्ट, बट वो ओवरशूट कर देता है ऑब्जेक्ट को. 5 months पे कम्स द बायडेक्स्ट्रस अप्रोच, दैट इज कुछ भी दोगे तो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना, तो कुछ भी दोनों हाथों से पकड़ना और फिर मुंह में डालना. सो बायडेक्स्ट्रस अप्रोच एंड माउथिंग बोथ अपीयर्स एट 5 months ऑफ एज. ओके, उसके बाद हुआ 6 months पे. फिर 6 months पे क्या आता है, यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच. पहले दोनों हाथों से पकड़ेगा 5 months पे और मुंह में डालेगा. फिर 6 months पे आता है यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच, एक हाथ से पकड़ेगा एंड अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड से पकड़ेगा. अल्नर एस्पेक्ट इज जो अल्नर बोन होती है ना मीडियल साइड में, तो अल्नर एस्पेक्ट से. तो कैसे पकड़ेगा, ऐसे करके, कुछ भी पकड़ेगा तो ऐसे करके पकड़ेगा, अल्नर एस्पेक्ट को यूज करके पकड़ेगा. और इट कम्स एट 6 months ऑफ एज. सो यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच, अल्नर एस्पेक्ट, 6 months ऑफ एज. ओके, फिर 7 month पे क्या होता है, अब पकड़ लिया उसने, अब एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर शुरू हो गया. ठीक है, सो दिस कम्स एट 7 month. अब 8 months पे फिर क्या होता है, नेक्स्ट 8 months पे आता है रेडियल ग्रैस्प, कि अभी तो अल्नर सरफेस से पकड़ रहा था, अब पकड़ेगा ऐसे, रेडियल ग्रैस्प. ठीक है, इसको कहते हैं रेडियल ग्रैस्प. रेडियल एस्पेक्ट ये वाला है, तो ऐसे करके पकड़ेगा. तो रेडियल ग्रैस्प कम्स एट 8 months ऑफ एज. 8 months पे रेडियल ग्रैस्प आ गई. फिर 9 months पे आई इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प. पिंसर ग्रैस्प का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 fingers, थंब एंड इंडेक्स फिंगर से ऐसे करके कुछ चीज पकड़ना, इसे कहते हैं पिंसर ग्रैस्प. सो दिस इज अ मैच्योर पिंसर ग्रैस्प. इमेच्योर मतलब कि ऐसे स्टार्ट करेगा बट टेक्स द हेल्प ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स. ओके, सो ऐसे करके पकड़ना किसी चीज को, ऐसे. तो दैट इज इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प. तो 9 months पे इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प और 12 months पे कम्स द मैच्योर पिंसर ग्रैस्प. सो दिस इज अबाउट द ग्रैस्प. ठीक है, सो क्विक रिवीजन. ठीक है, तो हमने क्या बात की, तो पहले हमने कहा कि 3 months पे आता है हैंड रिगार्ड, जो बच्चा अपने हाथों को देख रहा है, एंड आफ्टर 5 months ऑफ एज इट्स एबनॉर्मल. ओके, दिस इज अ बायडेक्स्ट्रस अप्रोच. ओके, सो बायडेक्स्ट्रस अप्रोच इज पकड़ा और दोनों हाथों से ऐसे करके पकड़ा, उसे कहते हैं बायडेक्स्ट्रस अप्रोच. दैट कम्स एट 5 months ऑफ एज. दोनों हाथों से पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, सो माउथिंग विद बायडेक्स्ट्रस अप्रोच. उसके बाद जो हमने ग्रैस्प की बात की, सबसे पहले आती है द अल्नर ग्रैस्प, ऑल्सो नोन एज द पामर ग्रैस्प. अल्नर ग्रैस्प का दूसरा नेम क्या है, पामर ग्रैस्प आती है. ठीक है, तो इसमें अल्नर एस्पेक्ट जो है यहां से पकड़ेगा. यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच पहले आती है विद द अल्नर और पामर ग्रैस्प. इट कम्स एट 6 months ऑफ एज. 6 months पे ये आई. 7 months पे ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट हुआ. फिर 8 months पे आई रेडियल ग्रैस्प और उसके बाद इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प आई 9 months पे एंड मैच्योर पिंसर ग्रैस्प आई 12 months पे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ. अब जब पकड़ना सीख लिया तो उसके बाद कास्टिंग आ जाती है. कास्टिंग मीन्स कि जो भी हाथ में है उसे फेंक दो. सो ऐसे करके एकदम से थ्रो करता है, जो भी हाथ में है उसे फेंक दो, दैट इज कास्टिंग. ठीक है, अब पेंसिल ऐसे होल्ड करना सीख लिया है तो अब 15 months पे आ जाएगा स्क्रिबलिंग आएगी. 15 months पे स्क्रिबल्स स्पॉन्टेनियसली. सो स्क्रिबलिंग कम्स एट 15 months. स्क्रिबल करने के बाद फिर
अब लिखना आ गया तो बच्चे को बुक भी चाहिए, सीधी सी बात है। जब उसके स्क्रिबलिंग आ गई तो उसके बाद फिर 18 मंथ्स पे टर्न्स 2 to 3 पेज एट अ टाइम, और फिर 2 years पे सिंगल पेज एट अ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि स्क्रिबलिंग आ गई तो अब किताबों की कहानी शुरू हो गई। हमने कहा 15 मंथ्स पे स्क्रिबलिंग आ गई है, तो 18 मंथ्स पे 2 से 3 पेज पलटेगा, एंड 2 years ऑफ लाइफ पे सिंगल पेज एट अ टाइम टर्न कर लेगा। ठीक है, अब हमने एक बात की थी कि स्क्रिबलिंग आई है, 15 मंथ्स पे स्क्रिबल करना आ गया। सो स्टूडेंट्स अब 2 years पे क्या आएगा, एक लाइन ड्रॉ करना, दैट कम्स एट 2 years ऑफ एज। ठीक है, फिर इसका हमारा एक निमोनिक होता है, दैट इज लॉक STD। ओके, सो L से लाइन, O से सर्कल, C फॉर क्रॉस, S फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल, T फॉर ट्राइंगल एंड D फॉर डायमंड। और ये कैसे कैसे आता है, सो लाइन एट 2 years, सर्कल एट 3 years, क्रॉस एट 4 years, स्क्वायर रेक्टेंगल एट 4.5 years, 5 years पे ट्राइंगल एंड 6 years पे डायमंड। तो दिस इज हाउ कि ये ड्राइंग वाले स्किल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि पहले तो पकड़ना कैसे सीखा, पहले तो बायोडेक्स्ट्रस अप्रोच हुई एट 5 months ऑफ एज, मुंह में लेता है हर चीज। फिर यूनिडेक्स्ट्रस अल्नर अप्रोच एट 6 months ऑफ एज। ठीक है, फिर 7 months पे ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट हो गया, 8 months पे रेडियल ग्रेस्प आ गई, फिर 9 months पे इमेच्योर पिंसर ग्रेस्प, 12 months पे मैच्योर पिंसर ग्रेस्प आई, पेंसिल पकड़ना सीख लिया, 15 महीने पे स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर दी, 18 मंथ्स पे 2 से 3 पेज पलटता था, और 2 years पे 1 पेज एट अ टाइम टेस्ट करने लगा, और 2 years पे फिर लाइन फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ओके, फिर 3 years पे लॉक STD हमने निमोनिक लर्न कर दिया, सर्कल आ गया, 4 years पे क्रॉस, 4.5 years पे रेक्टेंगल, 5 years पे ट्राइंगल एंड 6 years पे डायमंड। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स की ये अब आपको राइटिंग वाले स्किल्स हो गए हैं। ठीक है, अब राइटिंग वाले हो गए हैं, अब नेक्स्ट आता है फीडिंग स्किल्स। ओके, जो हम फीडिंग की बात करते हैं तो 6 months ऑफ एज पे बिस्किट अपने आप खा लेता है। ठीक है, उसके बाद 12 months पे कप एंड स्पून फीडिंग करता है, बट विद स्पिलिंग, पूरा स्पिल करके। अब 15 मंथ्स पे पहले बड़ी चीज से पीना आएगा, तो कप फीडिंग आ जाती है विदाउट स्पिलिंग, एंड देन 18 मंथ्स पे स्पून फीडिंग आ जाती है विदाउट एनी स्पिलिंग। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कप फीडिंग 15 मंथ्स पे, स्पून फीडिंग 18 मंथ्स पे बच्चा इंडिपेंडेंटली खाना पूरी तरह सीख जाता है। डन, तो दिस इज अबाउट द फीडिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूब्स की कहानी, कि क्यूब्स कैसे कैसे हैंडल करता है। सो उसको याद करने के लिए जो हम याद कर सकते हैं वो है क्यूब्स। ठीक है, सो क्यूब्स की स्टोरी शुरू होती है 15 मंथ से। सो 15 मंथ्स पे 2 क्यूब्स, तो 2 क्यूब्स, 15 मंथ्स पे 2 क्यूब्स, 18 मंथ्स पे 3 क्यूब्स। ओके, 18 मंथ्स पे 3 क्यूब्स हो गया। फिर 18 मंथ्स के बाद 2 years पे, तो 2 × 3 करेंगे आप तो 6 क्यूब्स। देन 3 years पे 3 × 3 करेंगे तो 9 क्यूब्स। ठीक है, 3 years पे 9 क्यूब्स हो गया, तो 9 क्यूब्स का पूरा टॉवर बना सकता है। ठीक है, फिर 4 years पे कम्जा एक ब्रिज बनाता है 4 years पे। 4 years पे क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है। फिर 5 years पे एक गेट बनाता है, ब्रिज के ऊपर एंटर होना तो गेट चाहिए, और फिर 6 years पे एक स्टेयर बना देता है ऊपर तक चढ़ने के लिए। अंडरस्टूड, तो 4 years पे ब्रिज, 5 years पे गेट, एंड देन 6 years पे स्टेयर्स उसके ऊपर चढ़ने के लिए। सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर अबाउट द क्यूब्स कैसे कैसे करता है। ओके, सो ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये हमने क्यूब्स भी कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि हैंडेडनेस गेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट एज। इट्स अ इंपॉर्टेंट MCQ, NICT में भी रिसेंटली पूछा था। तो हैंडेडनेस गेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय 3 years ऑफ एज, बट वेन वी हैव टू से द डिफरेंशिएशन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है, इट अपीयर्स बाय 4 years ऑफ एज। ओके, ठीक है, बॉल कैचिंग आती है 4 years ऑफ एज पे, एंड कैन टाई द शू लेसेस एट 5 years ऑफ एज। सो दीज आर अबाउट द फाइन मोटर माइलस्टोन्स। ओके, social personal milestones. Okay, so at 1 month of age
The baby looks at the mother intently when talked to. So जो mother बात करती है तो उनकी तरफ देखता है. 2 months पे आती है social smile, very important. मतलब जो भी smile करेगा उसको देखकर वो भी smile करेगा उसके सामने, ठीक है. And 3 months पे there is recognizes mother. Okay. Now 6 months पे smiles at the mirror image. So mirror play comes at the age of 6 months of age. Mirror play 6 months पे आता है. 7 month पे आती है stranger anxiety and inhibits to know. जैसे आप कहोगे no तो वो रुक जाएगा. So that comes at 7 months. Okay. 8 months पे आता है object permanence. It's very very important milestones. MCQ भी है एक previous year. तो इसका मतलब क्या होता है? Uncovers toy after seeing it hidden. मतलब उसने एक टॉय देखा, आपने उसको छुपा दिया, तो वो उसको फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, अनकवर करने की कोशिश करता है. दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है, ये 8 मंथ्स पे आता है. नॉर्मली एक छोटा बच्चा जो 3-4 मंथ्स का बच्चा है, उसने जब एक चीज देखी, जैसे वो चीज उसकी साइड से दूर हुई तो वो भूल जाता है उस चीज को. सो दैट चाइल्ड फॉरगेट्स दैट थिंग. बट एट 8 मंथ्स ऑफ एज देयर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज देयर. दैट इज the child tries to uncover the toy after seeing it hidden. Okay, so that comes at 8 months of age. Okay, then at 9 months comes the bye bye. 10 months there is plays peekaboo. So peekaboo means that is also one of the example of object permanence. Like पहले आपने hide किया, फिर baby को जैसे आप फिर से दिखोगे तो he'll be excited. So peekaboo. Okay, 12 months पे comes when called, plays simple ball games. So this is again a MCQ, previous year MCQ, that the child starts playing simple ball games at 12 months of age and kisses on request. 15 months पे, very important, indicate wet pants. Indicate wet pants. And pointing object comes at 15 months. Okay, so 2 P's are there at 15 months. So pointing and wet pants. So it points towards the wet pants. So this is how you can remember. So point, wet pants. ठीक है, so pointing comes and wet pants को indicate कर देता है. At 18 months of age, 2 D's are there. Dry during the daytime and domestic mimicry is there. Okay, so जैसे मदर कर रहे हो कि झाड़ू लगा रहे होंगे तो झाड़ू लगाएगा. हाउस होल्ड टास्क में इसलिए वही सेम चीजें करना शुरू कर देता है जो बड़े लोग कर रहे होंगे, अडल्ट कर रहे होंगे. सो दैट इज डोमेस्टिक मिमिक्री. ओके, सो 2 years पे comes the parallel play. So what is parallel play? कि अपना टॉय वो आराम से खेल रहा है और उसके साइड में कोई दूसरा बच्चा अपना गेम खेल रहा है, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना प्ले करेंगे. दैट इज एट 2 years of age. And at 3 years of age what happens is कि they join in play and share toys. So 3 years पे आपस में साथ में प्ले करना शुरू करेंगे. 2 years पे there is parallel play. Okay, 3 years पे join in play and share toys. ठीक है, and 3 years पे there is gender, knows the gender with full name. Again a previous year MCQ. And now the child starts drawing at the night. Also the handedness develops by 3 years of age, as I told you. Okay, now 4 years पे left and right discrimination is there, goes to toilet alone and asks questions. And in 5 years distinguishes morning from evening, helps in household tasks, follows 3-step commands and dresses and undresses. Okay, so this is about the social milestones. Now when we talk about the language milestones, तो 1 month पे क्या होता है, quietens when the bell is rung. So उसको समझ आ रहा है, सुन रहा है कुछ, तो जैसे ही बेल रंग होती है the child quietens. 2 months पे vocalizes when talked to. So when you talk to हाँ, तो the child हाँ हाँ करके जो ऐसे बातें करते हैं, that is vocalizes when talked to. 3 months पे there is squealing and the child squeals with pleasure. 4 months पे there is laugh aloud, जोर जोर से हंसना. 5 months पे there is raising. Raising is this is raising. Okay, so this comes at 5 months of age. Okay, then 6 months pe there is monosyllables, ma, da, pa. So monosyllables are there 6 months pe. Then 9 months pe comes the bisyllables but without any meaning. So mama, baba, baba, da, 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 da. So he is not called mama ya dada. So these are irrelevant, so without meaning bisyllables at 9 months. So 6 months से monosyllables हुए, 9 months पे bisyllables हुए, and then 1 year पे 2 to 3 words with meaning की vocabulary है, 2 to 3 words with meaning, and the child imitates the sounds.
15 months पे jargon speech. Jargon speech क्या होती है कि irrelevant talking होती है जिसमें बच्चा बहुत कुछ बोल जाता है but everything is irrelevant. Okay, so अपने ही words form करके speech होती है, that is the jargon speech. Then 18 months पे there is vocabulary of 10 words meaning. 2 years पे 2-word sentence and a vocabulary of 100 words. Then 3 years पे vocabulary of 250 words is there. Nursery rhymes आ जाती हैं. Then 4 years पे अब rhymes तो हो गई, अब टाइम आता है song and stories का. So songs and stories आ जाती हैं. And 5 years पे ask meaning of the word and names 4 color. Okay, so this is about the language milestones. So students, this is all about this topic of the growth, disorders of growth and the development. We have covered the important MCQs in previous 1 hour. Okay, so I hope now you will be able to answer as many questions from this topic. And as I told you, there is a quiz. Now you can attempt that quiz, and then you will come to know that where there is further scope of improvement in your preparation. So thank you, students.